नमस्कार, मैं हूं मुस्कान गौतम। डिजिटल बाल मेला में आप सभी का स्वागत है। कुल्लू के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचे उपायुक्त आशुतोष गर्ग से मिलकर बच्चों का बढ़ा आत्मविश्वास। कुछ ने ली सेल्फी तो कुछ बच्चों ने राजनीति और प्रशासन से जुड़े सवाल उनसे पूछे। यह मौका था बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत हुए संवाद सत्र का, जिसमें देश भर के 1000 से भी ज्यादा बच्चे जुड़े। इन बच्चों में राजकीय विद्यालय काजा, कैम्ब्रिज विद्यालय कुल्लू, राजकीय विद्यालय टुटू, राजस्थान, गुजरात, असम से भी बच्चे सत्र में मौजूद थे। 11 बजे हुए इस सवाल जवाब सत्र में कैम्ब्रिज विद्यालय कुल्लू की प्रशिष्टि ठाकुर ने पूछा कि प्रशासनिक अधिकारी वर्कलोड और राजनीतिक दबाव में कैसे संतुलन करते हैं, जिसका जवाब देते हुए उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि कार्यभार सभी व्यवसाय में होता है, ऐसे में अपने मन को शांत रखने से संतुलन कायम किया जा सकता है। Here, my name is Karishti Thakur and I am from class 12D Humanities and I am representing Cambridge International School Mohal, Kullu. So my question is related to you, Ashutosh sir, as most of the students are eager and excited to be civil servant and I am one of those. So I want to ask you that how do you manage your time and how do you face the pressures that you face either by the workload or by the political parties? Thank you, sir. So आपने जो सवाल पूछा है बेसिकली you asking about how do we manage our workload and in general I'm asking that in general, how do you manage your time and how will you figure out? Your voice has a lot of echo actually. I'm not able to hear properly. So my question is how do you manage your time and what are the work pressures that you face either by the political leaders or by the work that you have to do? जी okay. So basically I think work pressures जो है वो हर job में रहते हैं. It's not that it is specific to job of an administrator or whatever job one is in. We have some of the other kind of pressures and they might be different in case of administrators because you're dealing with public and you're dealing with a lot of issues which have decision taken by a person in position of responsibility can have a lot of impact on a large number of people. So that way things become more sensitive here. But I think as you grow in service and as you gain more and more experience, then you slowly become more capable to adapt to such situations. And also as you grow more older in service, decisions taken by you and the number of people who are impacted by those decisions, that number starts getting bigger and bigger, because initially you're working in a small place like a subdivision or a block, then you're working in the district, you're working for the state thereafter. So I think it is with experience that you gain that understanding, and with that मुझे ये लगता है कि and this applies to any other job also, having being calm and having a lot of patience while taking any decision and listening to both parties or all stakeholders is very important. अगर आप वो उस चीज को implement करते हैं and then make sure that you are listening to all types of views before you arrive at a conclusion, that helps you take better decisions. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल्लू की छात्रा दया ने आधुनिक भारत में कुप्रथाओं के चलते हो रहे भेदभाव पर सवाल खड़ा किया। इस समस्या से अवगत होते हुए मुख्य अतिथि ने बच्चों को बताया कि संविधान में भेदभाव के प्रति स्पष्ट मनाही है। ऐसे में कोई भी कुप्रथा को संपन्न करने के लिए आपको आगे आना होगा और उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, और यही एकमात्र रास्ता है। आपकी मदद के लिए सरकार, न्याय और हमारे जैसे अधिकारी हमेशा खड़े हैं। मेरा नाम दया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो देश है वो कहा जाता है कि सेक्युलर स्टेट है, तो क्या ये हर जगह एम्प्लॉय होता है? हमारे छोटे छोटे गाँव में देखा जाता है कि बहुत से छोटे छोटे घर होते हैं या छोटे रिलीजन होते हैं, उनके वो लोग बड़े लोगों से बातें करते हैं या उनसे टच नहीं होते हैं,
इनके घर को छूते ही अगर छू भी लिया जाए तो वे कहते हैं कि लोकल में कहते हैं ड्यूटी हो जाती है या मुझे ये कुछ और सारी चीजें करनी पड़ती है, ये होना चाहिए। सो ये आपने क्या नाम बताया? दया। दया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और आई थिंक सेक्युलर से ज्यादा आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, जो मुझे लगा, क्योंकि सेक्युलर मीनिंग कि आप सब रिलीजन को एक तरह से देखते हैं। सो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी प्रेवलेंट है, साथ में आपने जो बात की दैट इज अबाउट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वो भी प्रेवलेंट है। और वो बिल्कुल ठीक बात है कि उसको जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे आपने कुल्लू की बात करी, तो ऐसा जरूर हो सकता है कहीं पे कि जो देवता का इंस्टीट्यूशन है उसको हम यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू हम बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं जो आज की डेट में नहीं होनी चाहिए। एंड हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की बात करें, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी ये, कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियर है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और ऐसा होता है तो इट इज अ क्राइम। देयर आर आल्सो लॉज भी बने हुए हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ा जो दायित्व है वो आप लोगों पर है, हम लोगों पर भी है। और जो आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, अब स्कूल में सब लोग इकट्ठे बैठते हैं, मिड डे मील भी सब लोग इकट्ठे खाते हैं, एंड गवर्नमेंट ने इंटेंशनली इस तरह की पॉलिसीज लाई हैं कि जिससे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म हो, हमारे माइंड से ये बाहर निकले। बट स्टिल जब हम घर जाएंगे तो उस गांव के माहौल में या जिस तरह का वहां पे सेटअप होगा उसमें दोबारा से वो चीज को इम्पोज करने की कोशिश की जाती है। तो आई थिंक वी ऑल शुड क्वेश्चन इट। सबसे बड़ी बात है कि उसको क्वेश्चन करो, और जब आप किसी एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस को क्वेश्चन करते हैं तो बहुत लोगों को कष्ट होगा, और बहुत लोगों के अलावा जो उसको क्वेश्चन करेगा उसको भी बहुत कष्ट फेस करना पड़ेगा, उसको भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। बट देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट। ओनली वे ऑफ डूइंग इट इज टू क्वेश्चन इट, और उसको इतना क्वेश्चन करिए कि जो है उस पे जो और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो दबा के रखती हैं, उन प्रैक्टिसेस को आप ब्रेक कर पाएं, उनको तोड़ पाएं, और उसको धीरे धीरे करके खत्म कर पाएं। इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट, एकदम से नहीं होगा। जो एक सदियों से चली हुई प्रैक्टिस है, अगर हम सोचें कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तो अगले दिन ही ठीक हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ, आज भी है। और इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये भी। बट इसमें स्टूडेंट्स का, पढ़े लिखे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसको क्वेश्चन किया जाए, और जहां दिक्कत आती है तो उसको जो है वो अधिकारियों के, सरकार के ध्यान में लाया जाए। डिजिटल बाल मेला और एलआईसी द्वारा आयोजित बच्चों की सरकार कैसी हो के तहत गुरुवार 9 मई को संवाद सत्र आयोजित किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि कुल्लू उपायुक्त श्री आशुतोष गर्ग बच्चों के साथ जुड़े। उन्होंने बच्चों से राजनीतिक जरूरतें और प्रशासनिक प्रतिबद्धता की चुनौतियां विषय पर संवाद किया और बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने डिजिटल बाल मेला के बारे में बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में बाल विधानसभा सत्र का जो है वो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चों के साथ तरह तरह की इंटरेक्शंस जो है इस प्रोग्राम में करवाई जा रही हैं, ताकि स्कूल के बच्चों को ये एक्सपोजर मिले कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारा जो संविधान है वो एक्चुअल में ऑपरेशन में कैसे आता है। डिजिटल बाल मेला की फाउंडर जानवी शर्मा ने बताया कि इस संवाद सत्र में मुख्य अतिथि द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल्लू की छात्रा दया को सत्र का लीडर चुना गया। शिक्षा विभाग हिमाचल के तत्वाधान में आयोजित बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के चलते 12 जून को शिमला विधानसभा बाल सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष सत्र में देश के 68 बच्चे हिस्सा बनेंगे जो सरकार के सामने सुझाव और बाल मुद्दे उठाएंगे। इस सत्र का आयोजन हिमाचल विधानसभा में होगा। इसका मौका एचपी विधानसभा स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने दिया है, जिन्हें बच्चों की राजनीतिक जागरूकता के लिए शुरू किया गया यह अभियान बहुत पसंद आया। हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अभियान को भावी पीढ़ी के राजनीतिक विकास के लिए अहम बताया है। डिजिटल बाल मेला के लिए शिमला से मैं मुस्कान गौतम।